Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Let us play basketball today. Today we will learn something about basketball. You have played basketball many times, but today we will learn some theory about basketball. How we play basketball, where we play basketball, what is the court, what is the dimension of ball, everything we will learn. Little we will learn. Children, do you know this man? This man is the inventor of basketball and his name is James Smith. Now the things we needed for playing basketball. The things we need for playing basketball is, as you know, a ring, a basket. This is a basket which we have to put in this ring. This is the ring where we put the basket and it will become a basket, not goal. Every time I saw children saying like this is goal. No, this is not goal, this is basket. In this basket we have to put this basketball. Children, this is the court you have seen in the school. This is the court. In this we have free throw point. This is free throw line. This is free throw line. Next is three pointer. बड़ा वाला हाफ सर्कल दिख रहा है आपको? That is free three pointer line. यहाँ से बास्केट करने पे we get 3 points. We get 3 points अगर हम यहाँ से बास्केट करते हैं. As you know that basketball is a point game. So अगर हम फ्री थ्रो से बास्केट करते हैं we will get 1 point. If we basket from any inside 3 pointer we will get 2 points. But if we basket from outside this 3 pointer, this we get 3 points. Now what are the different positions of player? What are the different position of player? First player, shooting guard. Shooting guard. Next player, small forward. Small forward. Next is center. This is center. Next is power forward. 1, 2, 3, 4. Fourth position is power forward. Fifth point is point guard. Children, learn again. First position, first man, you can see in the picture. The first man is shooting guard. Second is small forward. Third is center. Fourth is power forward. And the last one is point guard. Now we will learn what are the basic skills. अगर हम बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या बेसिक स्किल्स आनी चाहिए. सो व्हाट आर द बेसिक स्किल्स नीडेड फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बॉल हैंडल करनी आनी चाहिए. होल्डिंग द बॉल. हाउ टू होल्ड द बॉल. होल्डिंग द बॉल करेक्टली यूजिंग योर फिंगर टिप्स एंड नॉट योर palm. Not your palm. Use your fingertips only. Palm you will not use. Palm you will not use. This way you will hold the ball. Next skill is passing. अगर आपके पास बॉल आती है तो you have to pass that ball to your partner so that कि हम जल्दी से जल्दी बास्केट कर सकें. So passing भी कई तरह की होती है. Passing can be chest pass. Chest pass means chest to chest pass. बाउंस पास, अगर हमारा प्लेयर थोड़ा दूर है तो हम बीच में एक बाउंस डालते हैं और बाउंस करने के बाद उसको पास देते हैं. ओवरहेड पास, सर के ऊपर से जो पास दिया जाता है उसको हम ओवरहेड पास कहते हैं. सो पासिंग मीन्स द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल इन प्लेइंग बास्केटबॉल. दिस स्किल रिक्वायर्स योर विजन, टच एंड स्ट्रेंथ. सो आई टॉट यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पासेस आर देयर. Chest pass. This is the picture of chest pass. Chest to chest pass. अगर हम अपने पास से पास कर रहे हैं तो जो हमारा पार्टनर है
अपने ही पार्टनर को हम बॉल पास करेंगे ना, सो चेस्ट टू चेस्ट पास करेंगे, सो दैट कि हमारे पार्टनर की चेस्ट तक वो पहुँचे और वो ठीक से उसको रिसीव कर सके। ये नहीं कि हम जैसे मर्जी फेंक दें बॉल को, नो, ऐसे पास करेंगे सो दैट कि हमारा पार्टनर ठीक से उस बॉल को रिसीव कर सके। अगर हम चेस्ट से अपनी चेस्ट के पास से फेंक रहे हैं तो दूसरे प्लेयर के पास चेस्ट के पास ही वो बॉल पहुंचनी चाहिए और वो ठीक से उस बॉल को रिसीव कर सके। बाउंस पास, ये बाउंस पास मेनली होता है जब हमारा पार्टनर हमसे थोड़ा दूर होता है। जब ये पार्टनर हमारा थोड़ा हमसे थोड़ा दूर होगा तब ये बाउंस पास किया जाता है। बाउंस पास में क्या करते हैं हम, बाउंस पास में एक बीच में बाउंस दिलाते हैं, अपने पास से बॉल को रिलीज़ करते हैं, बीच में एक बाउंस आता है और वो बाउंस लेने के बाद हमारे पार्टनर के पास पहुंचता है, हमारी टीम के प्लेयर के पास पहुंचता है, सो दैट कि वो प्लेयर ठीक से उस बॉल को रिसीव कर सके। ओवरहेड पास, हम अपने सर के ऊपर से बॉल को पास करते हैं और उसके सर के पास से होते हुए उसके हाथों में वो बॉल जाती है। हम ये ज़्यादातर लॉन्ग हाइट वाले जो लोग होते हैं, हाइटेड लोग होते हैं, वो पास फेंकते हैं, अपने सर के ऊपर से बॉल को फेंकते हैं और दूसरे के सर के पास से होते हुए उसके हाथों में बॉल पहुंच जाती है, मीन्स पास हो जाती है बॉल। थर्ड स्किल इज ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग इज an important attacking skill done by tapping of the ball with your fingers, not with your palm। जैसे हम बॉल को पकड़ते हैं पाम में, सेम वे वी ड्रिबल द बॉल ऑन द ग्राउंड विद अवर फिंगर्स इन जस्ट वन हैंड। दोनों हाथों का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करते हैं, ओनली विद सिंगल हैंड वी ड्रिबल, ईदर विद लेफ्ट हैंड और बाय राइट हैंड। These are the positions of dribbling. First position, ball is under our fingers। इसमें हमें बॉल पर पूरा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, बॉल ग्राउंड पर पहुंचती है और बाउंस करके वापस हमारे हाथ तक आती है। अगेन वी टच द बॉल विद अवर फिंगर्स, देन बॉल गोज डाउन एंड देन कम अप, द प्रोसीजर गोज ऑन। वी विल नॉट यूज़ पाम्स चिल्ड्रन इन दिस। और इसमें सबसे ज़रूरी है बॉल को होल्ड करके रखना। होल्ड करके नहीं रखेंगे तो दूसरा प्लेयर, दूसरी टीम का प्लेयर बॉल को लेके निकल चला जाएगा और बॉल हमारे हाथ से निकल जाएगी। नेक्स्ट स्किल इज शूटिंग। शूटिंग, मेन स्किल इज शूटिंग। हमने बॉल ले भी ली, पास भी कर दी, ड्रिबलिंग भी कर दी, लेकिन अगर हमने शूटिंग नहीं की तो हमारी सारी मेहनत बेकार। तो शूटिंग के लिए, क्योंकि मेन पॉइंट्स तो हमें शूटिंग से मिलने हैं, ना ड्रिबलिंग से मिलने हैं, ना ड्रिबलिंग से मिलने हैं, ना पासिंग से मिलने हैं, वो तो इसको सपोर्ट करते हैं। ओनली सपोर्टिव स्किल्स वर देयर। नाउ मेन स्किल इज शूटिंग। शूटिंग का मतलब होता है अब बास्केटबॉल को बास्केट के अंदर डालना, तब शूटिंग माना जाता है। शूटिंग में मैंने पहले ही आपको बताया, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ शूटिंग, जिसमें हम 1 पॉइंट मिलता है, 2 पॉइंट मिलते हैं और 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर हम फ्री थ्रो से शूटिंग करते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है, अगर फ्री थ्रो लाइन से बाहर से करते हैं तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं। जब हमें फ्री थ्रो मिलता है तब हमें 1 पॉइंट मिलता है, जब हमें फ्री थ्रो नहीं मिलता है तब हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं शूटिंग करने के। लेकिन अगर हम 3 पॉइंटर से या 3 पॉइंटर के बाहर से अगर बॉल शूट करते हैं तो हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो चिल्ड्रन, शूटिंग is one of the most important basic skills in basketball because it gives your team a scoring point। मेनली मैच को जीतने का तरीका, मैच को जीतने के लिए हमें शूटिंग करना ज़रूरी है। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ शूटिंग। फर्स्ट इज सेट शॉट, सेकेंड इज लेअप शॉट, जंप शॉट, हुक शॉट, स्लैम डंक। सेट शॉट, सेट शॉट इज डन ऑन फ्री थ्रो लाइन, सीधी बॉल बास्केट के अंदर जाती है। लेअप शॉट, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ लेअप शॉट। फर्स्ट we hold the ball in our hands. Layup shot done while the player moves and throws the ball into basket. Only 2.5 steps we can take in this. Jump shot done in bending down and jumping to shoot the ball. इसमें हम क्या करते हैं,
जंप लेकर के बॉल को ऊपर को बाउंस करके और बास्केट के अंदर डालते हैं. दिस इज कॉल्ड जंप शॉट डन इन बेंडिंग डाउन एंड जंपिंग टू शूट द बॉल. नेक्स्ट इज हुक शॉट. as it is clear in the picture, hook shot done by arching the far hand upward while moving sideways to the basket. देख रहे हैं प्लेयर के हाथ में कैसे बॉल पकड़ी हुई है. बॉल को हुक की तरह बना करके हमें बास्केट में फेंकना होता है. स्लैम डंक done by a player who takes the ball and throws it down to the basket with great force. फुल फोर्स के साथ वो बॉल को उसके बास्केट के अंदर डालता है, फुली जंप करके और बास्केट के अंदर बॉल को डालता है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द स्किल्स. चिल्ड्रन, learn these skills and practice it at home if you can. If you have basketball, you can practice dribbling as well as passing at home. Thank you and have a nice day.